السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سعودی عرب کی حکومت نے امتحانی مراکز میں عبایا پہننے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سعودی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ایولیوشن کمیشن ETEC نے اس بارے میں بتایا کہ طالبات کو امتحان کے دوران عبایا پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ETEC کے مطابق طالبات کو امتحانی ہالز کے اندر اسکول یونیفارم کی پابندی ضرور کرنی ہوگی، جبکہ اسکول یونیفارمز کو عوامی شائستگی کے مؤثر ضابطوں پر عمل کرتے ہوئے بنایا جائے گا۔ یاد رہے کہ سال 2019 میں سعودی حکومت نے پہلی بار سیاحتی ویزے کا اعلان کرتے ہوئے غیر ملکی خواتین سیاحوں کے لیے عبایا پہننے کی لازمی شرط کو ختم کر دیا تھا۔ کرناٹک مقننہ کے دونوں ایوان مہاراشٹر کے ساتھ سرحدی تنازع پر ایک قرارداد پاس کریں گے۔ مقننہ نے ریاست کی اس موقف کو دہرایا ہے کہ یہ معاملہ طے شدہ ہے اور پڑوسی ریاست کو 1 انچ زمین نہیں دی جائے گی۔ منگل 20 دسمبر کو اسمبلی میں سرحدی تنازع پر بحث کے دوران کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی نے ریاست کے موقف کو دہراتے ہوئے ریاستی مقننہ کے دونوں ایوانوں میں متفقہ قرارداد پاس کرنے کی تجویز دی، جس پر قائد حزب اختلاف سدھرمیا سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے ارکان نے اتفاق کیا۔ بحث کا آغاز کرتے ہوئے سدھرمیا نے کہا کہ کسی تنازع کا سوال ہی اس پر پیدا نہیں ہوتا۔ بتا دیں کہ کرناٹک اور مہاراشٹر کے درمیان سرحدی تنازع کافی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس کو لے کر کئی سیاسی رہنماؤں کی طرف سے بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد سرحد پر بھی، بیلگاوی کی سرحد پر بھی تنازع گزشتہ دنوں احتجاج بھی کیا گیا تھا، اور جس کو لے کر کافی تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ CAA اور NRC کے خلاف تاریخی احتجاج کے دوران جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پولیس کے وحشیانہ تشدد کے 3 سال کی یاد میں منگل کو پریس کلب آف انڈیا میں سول سوسائٹی کے ارکان، صحافی اور قانونی برادری کے ارکان اور طلباء جمع ہوئے، جہاں انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس ان لوگوں کے دفاع میں منعقد کیا گیا جنہیں اقلیتوں اور پسماندہ افراد پر حملوں کے خلاف بولنے کے اپنے جمہوری حق کا استعمال کرنے پر سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے وقت ہندوستان کے 2 تصورات تھے۔ سب سے پہلے آئینی جمہوریت کا تصور تھا، جس کا ویژن تھا کہ جہاں سب کو برابر سمجھا جائے، اور دوسرا وہ ویژن تھا جس کی RSS نے حمایت کی تھی، جہاں کچھ کو اعلیٰ شہری سمجھا جائے اور دوسروں کو ان کے مذہب کی بنیاد پر کمتر سمجھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آج یہ وہی دور ہے جو اب لاگو کیا جا رہا ہے۔ 3 سال قبل پولیس کی کارروائی کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس کو کس طرح کا استثناء دیا گیا ہے، اور وہ اس معاشرے کے ہر فرد کو اسے تشویش ہونی چاہیے۔ پاور پولیس کے ہاتھ میں آ گیا ہے، یا پولیس سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس ملک کا رہنے والا ہر مسلمان تمہارا دشمن ہے۔ رام نومی کے وائلنس ہوئے، کرولی میں ہوا، راجستھان میں، مدھیہ پردیش کے کھرگون میں دنگے ہوئے۔ آپ دیکھیں گے کہ 99% اریسٹ جو ہے وہ ایک ہی کمیونٹی سے ہو رہی ہے، اور جو بچہ جیل سے چھوٹ کے آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے پٹائی سے تکلیف نہیں ہوئی، جو اسلامو فوبک گالیاں ہم کو دی گئیں ہمیں اس سے تکلیف ہے۔ جب ہم نے کرولی کے لوگوں سے ملاقات کری، کرولی میں جو لوگ چھوٹ کے آئے تھے، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم کو اس سے تکلیف نہیں، مار پٹائی تو ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے رمضان میں ہمارے ساتھ جو بدتمیزی کری، جو اسلامو فوبک ٹریٹمنٹ ہمارے ساتھ کیا گیا، تو اس سے تو لگتا ہی نہیں کہ یہ پولیس ہمارے ملک کی پولیس ہے۔ اس سنڈے پریئر میں 27 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا۔ ان کے ریلیٹیوز جو مسلم کمیونٹی میں تھے، انٹر کاسٹ میرج تھی، ان کے ریلیٹیو جو مسلم کمیونٹی کے تھے وہ کھانا لے کے گئے تو ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا۔ تو پتہ چلا مسلمان کو اریسٹ اس لیے کیا گیا کیونکہ اس کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ وہ ہندو کو کرسچن بنا رہا ہے، مسلمان ہندو کو کرسچن بنا رہا ہے، اس لیے اریسٹ۔ یہ ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں۔ تو اوور آل سوال یہ ہے کہ یہ پولیس کی جو گنڈا گردی یا پولیس کی تاناشاہی ہے، یہ کب تک چلے گی اور یہ کب تک ہم برداشت کریں گے؟ یہی سوال ہم لوگ آپ لوگوں سے چھوڑ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا لوگوں میں مقبول ہوتی جا رہی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ روز اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ BJP مسلسل اس یاترا کو نشانہ بنا رہی ہے، لیکن لوگوں کا ہجوم اور یاترا کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی۔ اب مرکزی وزیر صحت منسکھ منڈاویہ نے چین میں بڑھتے کووڈ معاملات کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی اور راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت کو خط لکھ کر ان پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت جوڑو یاترا کے دوران کووڈ پروٹوکول پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔
वजीर ने अपने खत में कहा है कि अगर पार्टी इस बात को यकीनी नहीं बना सकती कि कोविड-19 प्रोटोकॉल की पैरवी की जाए तो फिर कौमी मफाद में यात्रा को मुअत्तल कर दिया जाना चाहिए। वजीर ने उन पर जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि सिर्फ वैक्सीन शुदा लोग ही यात्रा में हिस्सा लें। वहीं इसी पर राहुल गांधी ने कहा कि हम कोविड उसूलों की पैरवी करेंगे, लेकिन आपको पहले कोविड उसूलों का ऐलान तमामों के लिए करना पड़ेगा। वहीं वजीर सियाहत के खत का जवाब देते हुए कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी ने बुध को कहा कि मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात इंतखाबात के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की पैरवी की थी। मुझे लगता है कि मनसुख मंडाविया राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन लोग उसे पसंद कर रहे हैं और उसमें शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंडाविया को आवाम की तवज्जो हटाने के लिए तैनात किया गया है। इक़्तिदार का नशा बीजेपी रहनुमाओं के सर चढ़कर बोल रहा है। उन रहनुमाओं के पास आईएएस और आईपीएस अफसरान की भी अब कोई वक़ात नहीं रही है। तमिलनाडु से जाफरानी पार्टी के रहनुमा एच राजा ने तमिलनाडु के आईएएस और आईपीएस अफसरान को अब धमकी दे डाली है। दरअसल तमिलनाडु की डीएमके सरकार के अफसरान मरकजी हुकूमत को यूनियन हुकूमत कहते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि अगर आईएएस और आईपीएस अफसरान मरकजी हुकूमत को यूनियन गवर्नमेंट कहते रहेंगे तो हम उन्हें मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश मुंतकिल कर देंगे और उन्हें योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर के सामने खड़ा कर देंगे। वहीं हिंदुत्व लीडर ने यह भी कहा कि तमिल कौम परस्ती की बात करने वालों को जेल में डाल देना चाहिए। दरअसल डीएमके ने 2021 में रियासत में इक़्तिदार संभालने के बाद हुकूमत हिंद को तमिल ज़बान में ओनरिया अरासू यानी कि यूनियन हुकूमत के तौर पर हवाला देना उसका शुरू किया था, जबकि इससे कबल उसे मथिया अरासू यानी कि मरकजी हुकूमत के तौर पर कहा जाता था। जबकि उस इक़दाम की बीजेपी मुसलसल मुखालफत कर रही है। उनका कहना है कि ये मरकज़ के साथ तसादुम की कोशिश है। बीजेपी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि इस इक़दाम के पीछे डीएमके का मकसद हिंदुस्तान से तमिलनाडु की अलहदगी का अमल शुरू करना। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके एक बयान के सिलसिले में माफ़ी का मुतालबा बीजेपी के लिए पार्लियामेंट में मज़ीद शर्मिंदगी का बाइस बन गया, जब उन्होंने तहरीक आज़ादी को याद दिलाते हुए आरएसएस के किरदार को उन्होंने उजागर किया। दरअसल माफ़ी के मुतालबे ने पार्लियामेंट में आरएसएस और आज़ादी की तहरीक की तरफ तवज्जो मबसूल करवा दी, जिसमें आरएसएस का कोई रोल नहीं है। दरअसल बीजेपी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे पीर को अलवर में अपने गैर मुतय्यना रिमार्क के लिए माफ़ी मांगे, लेकिन कांग्रेस सदर ने माफ़ी मांगने से इनकार करते हुए ऐसा जुमला कह दिया जिससे बीजेपी को मजीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। खड़गे ने कहा कि जो बात भारत जोड़ो यात्रा में की गई उस पर पार्लियामेंट में बहस की क्या ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ वही बात दोहराता हूँ जो मैंने बाहर कही थी तो उससे उन लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। बाहर जो कहा अगर फिर यहाँ रिपीट करूंगा इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। दरअसल पीर को राजस्थान के अलवर में एक अवामी रैली में खड़गे ने चीन के साथ सरहदी झड़पों के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी वाले कांग्रेस की हुब्बुल वतनी पर सवाल खड़े करते हैं, जबकि हमारे लीडरों ने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, जबकि उनके घरों में मुल्क के लिए एक कुत्ता भी नहीं मरा है। वहीं राज्यसभा में बीजेपी के अरकान ने खड़गे के तबसरों की मजम्मत की और कहा कि उन्हें ऐवान और बीजेपी से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उन्हें इस ऐवान में मौजूद रहने का कोई भी हक नहीं है, जिस पर खड़गे ने इस तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार किया। आजमगढ़ के 12वीं पास सलमान ने अपनी तकनीकी इल्म की बेहतरीन नुमाइश करते हुए नैनो कार से हेलीकॉप्टर बना दिया है। अब इस हेलीकॉप्टर की शादियों में बुकिंग की जा रही है। दुल्हन की विदाई की पहली पसंद बना ये ईजाद आजमगढ़ में कोतवाल इलाके की पहली पसंद बन गया है। यहाँ खास बात यह है कि सलमान के वालिद नूरुल हसन खुद इस ईजाद को बेकार की बात बता रहे थे, लेकिन अब वो खुशी से फूले नहीं समा रहे। सिर्फ 12वीं पास सलमान की ईजाद सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में एक कार हेलीकॉप्टर की शक्ल में सड़कों पर दौड़ता नजर आ रहा है। आजमगढ़ के तरवा थाना इलाके के पकड़ी कला गांव के रहने वाले सलमान ने अपनी कारीगरी से एक टाटा नैनो गाड़ी को मॉडिफाइड तरीके से हेलीकॉप्टर बना दिया है। खास बात यह है कि सलमान ने कार को हेलीकॉप्टर की शक्ल देने में कबाड़ का इस्तेमाल किया है। सलमान के इस मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर को आजमगढ़ की सड़कों पर जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। सलमान ने अपनी सलाहियत से अपनी पुरानी नैनो कार को हेलीकॉप्टर की शक्ल दे दी है। बस फर्क ये है कि ये हेलीकॉप्टर परवाज नहीं भर सकता। सर वहाँ से फ़ोन आने लगती है या जहाँ पे जा रहे हैं हमारा कार्ड लोग ले रहे हैं, हमारा नंबर मांग रहे हैं, फिर वो आराम से फ़ोन कर रहे हैं
कि भाई हमें शादी में जाना है, यहाँ वहाँ मतलब जगह जगह बता रहे हैं लोग, उसी आधार पे बुकिंग हो रही है सर। किसी ने मध्य प्रदेश के असम्बली में सरमाई इजलास के दौरान मदारिस के निसाब की तहकीकात से मुतालिक बहस मुबाहसे के बाद अब मुस्लिम रहनुमाओं की तरफ से मुतालबा शुरू कर दिया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि RSS की निगरानी में चलने वाले तालीमी इदारों की भी जांच की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली आरिफ मसूद ने कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से मदारिस के निसाब के तहक़ीक़ात की बात की जा रही है, ताहम इस पहलू को हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है कि मदारिस के ग्रांट्स की रकम बरसों से जारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर तहक़ीक़ात की नीयत में कोई खामी नहीं है तो हुकूमत को मदारिस के साथ सरस्वती शिशु मंदिरों और तमाम तालीमी इदारों की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मदारिस में काबिल एतराज़ निसाब का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है और न कभी होगा। हम तहक़ीक़ात में ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन निसाब के तहक़ीक़ात का आगाज़ सरस्वती शिशु मंदिर के बैनर तले चलने वाले स्कूलों में भी होनी चाहिए, ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी और रियासती हुकूमत की नीयत और मंशा में कोई खामी नहीं है। वहीं एक और रहनुमा ने कहा कि मदारिस को लेकर जिस तरह के सवालात खड़े किए जा रहे हैं, उसकी शिकायत अगर किसी ने की है तो उसे भी आवाम के सामने लाना चाहिए, क्योंकि अगर वाकई शिकायत की गई है तो उसे मंजर आम पर लाया जाना चाहिए, ताकि हमें भी पता चले कि किस मदरसे में गलत तालीम दी जा रही है। वो एलन मस्क ने सारिफीन का फैसला तस्लीम करते हुए ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा छोड़ने का ऐलान तो कर दिया है, मगर उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। क़ब्ल एलन मस्क ने सारिफीन की अक्सरियत की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा छोड़ने के हक़ में वोट देने के बाद पॉलिसी में तब्दीली करते हुए कहा कि सिर्फ ब्लू टिक वाले अकाउंट्स को वोट डालने की इजाज़त होगी। ट्विटर पर कराए गए पोल में 1,70,00,000 से ज़्यादा ट्विटर अकाउंट में से मजमूई तौर पर 57.5% ने एलन मस्क के ओहदा छोड़ने के हक़ में वोट दिया है। ताहम अब एलन मस्क ने अपने एक ताज़ा ट्वीट में कहा है कि वो बतौर ट्विटर चीफ एग्जीक्यूटिव मुस्ताफ़ी हो जाएंगे जब उन्हें उस काम के लिए कोई बेवकूफ़ मिल जाएगा। एलन मस्क ने ट्वीट में कहा कि मैं बतौर CEO मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा जब मुझे यह ओहदा लेने वाला कोई खातिर ख्वाह बेवकूफ़ मिल जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि उसके बाद मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर और सर्विस की टीम को संभालूंगा। ख्याल है कि एलन मस्क 27 अक्टूबर से ट्विटर के मुकम्मल मालिक हैं और CEO की हैसियत से बार बार तनाज़ात का शिकार रहे हैं। वो अब तक ट्विटर के निसफ अमले को भी बर्खास्त कर चुके हैं। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।